سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مادر وطن کی ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرنے کے لیے آج یوم دفاع الشہداء منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے تحفظ اور تعمیر نو کے لیے شہداء اور غازیوں کے ستمبر 1965 کے جذبے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام نے 1965 کی جنگ کے پاکستانی شہداء کو دلی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے علماء اور مشائخ پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دینے پر زور دیا ہے۔ سینیٹ کو آج آگاہ کیا گیا کہ اکتوبر میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ قومی اسمبلی نے آج انتخابی ترامیم بل 2024 اور پرامن اجتماعات اور امن عامہ بل 2024 منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کی رابطہ کار برائے موسمیاتی تبدیلی نے چینی وفد کو ماحول دوست سفری منصوبے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوم دفاع الشہداء آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 1965 میں آج ہی کے دن بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کی، مگر قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہداء کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم جوانوں اور شہداء کی قربانیوں اور پاکستان کے دفاع کی خاطر لڑنے والے تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق پاکستان کے دفاع اور تعمیر نو کے لیے شہداء اور غازیوں کے ستمبر جیسے جذبے کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے روشن مستقبل کی خاطر ایک لائحہ مرتب کرنے کے لیے سخت محنت، اتحاد اور محبت کے اقدار اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یوم دفاع الشہداء کے موقع پر شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج رات GHQ راولپنڈی میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ سول و فوجی قیادت اور دیگر معززین تقریب میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ایوان میں وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ طاہر نے آج راولپنڈی میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر گئے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیپٹن احمد بدر شہید ہمارا فخر ہیں اور قوم ان کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آج صبح کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے بابائے قوم کے مزار پر گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے پریڈ کا معائنہ کیا اور مزار قائد پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ایئر وائس مارشل شہریار خان نے ستارہ امتیاز نے شہداء کو سلام پیش کیا، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے وطن عزیز اور اس کی علاقائی سرحدوں کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
पाक फजाइया की 13 खवातीन समेत 74 कैडेट्स मज़ार कायद पर तैनात हैं। यौम दिफा के मौके पर मज़ार इकबाल लाहौर में एक सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान, शोहदा और अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। आज यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम ने 1965 की जंग के पाकिस्तानी शोहदा को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि जब 1965 में भारत ने पाकिस्तान के वजूद पर हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौज और पूरी कौम भारतीय जाहिलियत के खिलाफ सपारा हो गई और उसके मसमू मज़ाइम को खाक में मिला दिया। उन्होंने कश्मीरियों के हक़ की खुदादियत की हिमायत पर पाकिस्तान के इस्तक़लाल को सराहा और कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह तनाज़े कश्मीर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की और कहा कि एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा और मशाइख पर जोर दिया है कि मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। उन्होंने आज यौम दिफा के मौके पर दो टोक अल्फाज में कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला एक दहशतगर्द है और हम उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों पर जोर दिया कि वो हथियार डाल दें और रियासती अमलदारी और आइन को तस्लीम करें। उन्होंने उलमा और मशाइख को यकीन दहानी कराई कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनकी तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी चौधरी सालिक हुसैन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि यह वक्त है कि उलमा और मशाइख मुआशरे की इस्लाह के लिए आगे आएं और अपना भरपूर किरदार अदा करें। आज ऐवान में 2 बिल मंजूर किए गए जिनमें इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 और पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल 2024 शामिल हैं। बाद में ऐवान का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट को आज आगाह किया गया कि रवां साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की कौंसिल के इजलास की मेज़बानी की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वक़फ़ा सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि इजलास में तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान जामे मुज़ाकरात किए जाएंगे जिनमें मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मवासलात और रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा, सकाफ़त, ग़ुरबत के खात्मे और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सेनेट में आज एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें शोहदा और मुल्की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। करारदाद आज यौम दिफा के मौके पर सेनेटर पोंजो बिल की तरफ से पेश की गई थी जो आज मनाया जा रहा है। करारदाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के हौसले और बहादुरी का एतराफ़ किया गया है। बाद में सेनेट की कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीन के एक आला सतह के वफ़द ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की मुआविन बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम से मुलाकात की। वफ़द ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सामान की तरसील में तब्दीली लाने के लिए बैनुल अक़वामी मयार की तरसीली सहूलियात की फ़राहमी पर गुफ्तगू की। उन्होंने वज़ीर आज़म की मुआविन को बताया कि पाकिस्तान का सरसब्ज़ नक़्ल हमल के मनसूबे का मकसद नक़्ल हमल के निज़ाम को माहौल दोस्त बनाना है। पाकिस्तान के सामान की तरसील के निज़ाम में रुमीना खुर्शीद आलम ने इलेक्ट्रिक बसों के नेटवर्क और चार्जिंग की सहूलियात की फ़राहमी में दिलचस्पी के इज़हार पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के हवाले से इंसानियत के लिए रहमत के मौजू पर अपना पहला सेमिनार नश्र करेगा। सिलसिला है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगम्बर इंसानियत। 4:05 पर एक और प्रोग्राम में यौम दिफा के सिलसिले में जंग सितंबर से अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान तक के मौजू पर एक खुसूसी मुबाहिसा भी नश्र किया जाएगा। और अब मौसम।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और कोयटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और मुजफ्फराबाद 33, कराची 30, पेशावर 35, गिलगित 28, मरी 20, श्रीनगर 27, जम्मू 30 और लेह 19 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। मादरे वतन की हर किस्म के खतरात से हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म का यादा करने के लिए आज यौम दिफा शुहदा मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नौ के लिए शहदा और गाज़ियों के सितंबर 1965 के जज्बे और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच को मशर राह बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और दर्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।